Hello and welcome to Ramanujan's Institute. This is me Shanawaz Khan. So today I am going to discuss the newspaper articles of third week of March. These are the courses we are providing coaching classes in our Agartala and Dharmanagar branch. We are starting new batches for your TPSC combined, TCS TPS, TET 1 and TET 2 from 6th and 7th April. Interested candidate can contact on the number given below. These are our two numbers. You can contact in these two numbers. For the PDF, you can subscribe our Telegram channel by typing Ramanujan's Institute. Ramanujan's Institute. Other than this PDF, you can also have all the currents update regarding various competitive exams in our Telegram group itself. Moreover, we have app namely Ramanujan's Institute in Google Play Store. You can download it and can avail all the online classes from our side. These are the topics which I am going to take today. In total, there are 6 topics. That is in the topics from Indian economy, Indian foreign policy, then again Indian economy, polity and governance, Indian foreign policy, and Indian economy. These topics are very important for your TCS TPS mains exam point of view. Now look at the first topic. That is, has poverty really dropped to 5% in India? It's related to poverty. So we can connect this topic to our GS paper 4, section A, poverty. That is in Indian economy. There is a paper in TCS TPS under GS paper 4. So वहाँ पे poverty है, poverty के साथ इस topic को हम connect कर सकते हैं. Poverty related से क्या क्या question आया आज तक TCS TPS में especially from 2019. देखिए, explain the relationship among poverty, inequality and growth. ये 5 मार्क का क्वेश्चन आया था इन द ईयर 2020 TCS TPS मेंस में. और एक क्वेश्चन आया था उसी साल, explain the vicious circle of poverty, what are its major classes, suggest some measure to overcome this vicious circle. ये क्वेश्चन आया था 14 मार्क्स के. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो देखते इसमें क्या है. Now, Niti Aayog BVR Subramaniam recently claimed that less than 5% of Indians now live below the poverty line. उन्होंने क्लेम क्या किया? उन्होंने क्लेम किया कि इंडिया का जितना भी लोग है उससे 5%, लेस देन 5% पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. ओके, उन्होंने ऑन द व्हाट बेसिस ये एस्टिमेट किया? ऑन द he made the claim based on the findings on the household consumption expenditure survey 2020 to 2023. That is on the consumption expenditure, on the basis of the consumption expenditure, उसी बेसिस पे उन्होंने ये क्लेम किया कि इंडिया का जो प्रेजेंटली पॉवर्टी रेट है दैट इज बिलो 5%. Now Subramaniam ji argued that the average consumption expenditure in the bottom 5% of India's population as estimated by the survey is about the same as the poverty line in India. Okay, so these are the other not that much important. Now उन्होंने जो क्लेम किया उस क्लेम का मतलब व्हाट इज द मेन पॉवर्टी लाइन, कितना कंजम्पशन करना चाहिए सो दैट अ पर्सन कैन अपलिफ्ट फ्रॉम द बिलो पॉवर्टी लाइन. सो ये थोड़ा देखते हैं हम लोग. द क्लेम इज दैट लेस देन 5% ऑफ इंडियंस लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन. वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इन द पॉवर्टी. ओके, व्हाटएवर. इन ये पॉइंट देखिए, इन 2011-22 द पॉवर्टी लेवल इन इंडिया बेस्ड ऑन द सेम पॉवर्टी लाइन एज ऑफ टुडे वाज 12.5%. Now it's down to 5%. This point is very important. You can use this point in your mains answer writing. Okay, so in critical if any critical analytical question comes, so you can compare the today's poverty line and that the 10 years ago the poverty line, what was the difference between these two, then how India is progressing. Okay, so
before in the year 2011-12, the poverty percentage was 12.5%. Now it is below 5%. Okay, if you apply the poverty line, now अभी देखिए वो कौन सा poverty line क्या है, on the what basis he is saying that India's poverty is below the 5%. Now he said that in rural area अगर कोई मान लीजिए कि 1500 कमाता है, लाइक कंजम्पशन में खर्चा करता है, एंड अर्बन एरियाज में अगर 1800 खर्चा करता है, यू गेट समथिंग क्लोज टू पॉवर्टी लेवल ऑफ 2%. अगर ये हम एस्टिमेट करते कि लाइक इन रूरल एरियाज लाइक अ पर्सन कैन लाइक अर्निंग 1500 in a month, and in urban areas if a person earning 1800 in a month, so they will no longer termed as a poor people. They will be termed as a APL people, that is above poverty level people. So on that basis he is saying that the poverty level in India is nearly 2%. But if we compare with this, in the world bank ने एक स्टैंडर्डाइज दिया था कि अगर वर्ल्ड बैंक का जो हम लोग का जो डेटा है, वर्ल्ड बैंक का पॉवर्टी लाइन से हम लोग अगर कंपेयर करते हैं कि व्हाट इज द पॉवर्टी रेशियो और पॉवर्टी परसेंटेज इन इंडिया, तो उसको अगर हम कंसीडर करते देन इट इज 25% इन रूरल एरियाज एंड 11% इन अर्बन एरियाज, एंड इन एट एवरेज इट इज 21%. सो ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड बैंक इट इज 21%, बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंजम्पशन, ये जो आपका जो सर्वे हुआ था, दैट इज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2020-23, ये जो सर्वे हुआ था, ऑन दैट बेसिस पॉवर्टी लेवल इज नियरली 2%, और यू कैन से इट इज बिलो 5%. ओके, सो यू कैन यूज दिस डेटा इन योर मेन्स आंसर राइटिंग, दैट इज दिस topic is important for your exam point of view. Okay, now move on to the next topic. What is there now? This is related to India China relationship. That is, we can connect this topic to our GS paper 3 section D, relationship of India with neighboring countries के साथ इस टॉपिक को हम कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, इस टॉपिक रिलेटेड TCS TPS मेंस 2020 में क्वेश्चन आया था. एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडियंस फॉरेन पॉलिसी ऑन इंडिया चाइना रिलेशन. इंडिया चाइना रिलेशन के दौरान इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस आया है. ओके, नाउ इंडिया चाइना रिलेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है इस टॉपिक का. इंडिया हैज लॉन्च्ड अ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट, सॉरी नॉट इंडिया, China has lodged a diplomatic protest with India over the Prime Minister's Modi's visit to Arunachal Pradesh, where he dedicated the newly built Silla Tunnel to the nation. ये जो आप लोगों को पता है, सिला टनल कुछ दिन पहले PM मोदी जी ने ये इनोग्रेट किया है. It is the longest two-way tunnel in the world. Okay, इस टॉपिक को लेके हमारे पलाश सर ने एक लेक्चर लिया है यूट्यूब में, आप देख लेना. Okay, so inauguration of Silla Tunnel Pass. The PM inaugurated the Silla Tunnel, constructed at an altitude of 13,000 feet in Arunachal Pradesh. It connects Assam Tejpur to the West Kameng district in Arunachal Pradesh. Okay, it is very important. You have to remember this. कहाँ से कहाँ तक? तेजपुर से लेके आपका वेस्ट कमेंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट कमेंग. ओके, वेस्ट कमेंग तक इसको कनेक्ट किया है. It will also ensure better movement of troops along the frontier region. So it leads to, this tunnel leads to what? जो आपका मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है, और इन नॉर्मल टाइम सर्कमस्टेंसेस जो हम लोगों का जो डिफेंस पर्सनल्स है उनको मूवमेंट के लिए बहुत ईजी हो जाएगा. नाउ चाइनीज ऑब्जेक्शन, चाइना का क्या ऑब्जेक्शन है? चाइना क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश एज साउथ तिब्बत, रूटीनली ऑब्जेक्ट टू इंडियन लीडर्स विजिट टू द स्टेट. टू हाईलाइट इट्स क्लेम, चाइना इज ऑल्सो नेम्ड द एरिया एज Zangnan. Okay, it is important, Zangnan. So obviously we know the like character of China. चाइना का ऐसा ही है कि वो बोलता है सब उसका है. So on this regard they term Arunachal Pradesh as the South Tibet. Okay, so they claim Arunachal Pradesh as their territory. Rejection of the Chinese territorial. India has repeatedly rejected China's territorial claim over Arunachal Pradesh, asserting that the state is an integral part of the country. Obviously it is integral part of the country. In fact, POK is also our integral part of our country, which is under the occupation of Pakistan. So what is the main
main essence of this topic is that India has built a tunnel in the Arunachal Pradesh to provide better accessibility in the border region so that we can counter China. Okay, so this is the topic. You can use it in mains answer writing. Now look at the third topic is no major changes in employment status or wages in 10 years. Okay, that means in last 10 years में ये जो wages जो income होता है, जो लोगों का salary है, wages है, उनमें कोई status employment status में कोई changes नहीं आया, कोई growth नहीं हुआ. Okay, so इस पेपर को हम यहाँ पे GS पेपर 3 लिखा हुआ है, so you need to correct it. It should be GS पेपर 4, that is Indian economy का section A unemployment का जो टॉपिक है उसके साथ इस टॉपिक को हम कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, ये द हिंदू का एक टॉपिक है. सो देखते क्या टॉपिक है इसमें. करंट न्यूज ऑन March 11 बहुत्व Karnataka, a forum for concerned citizen, and it's a organization. It is titled, उन्होंने एक क्या किया, एक सर्वे किया एंड दे लाइक इन बेंगलोर प्रेस क्लब में उन्होंने एक डेटा पब्लिश किया रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट. एक रिपोर्ट पब्लिश किया एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट, वेजेस एंड इनइक्वालिटी को लेके. उस रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि रिपोर्ट द प्रोग्रेस इन वेरियस एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडिकेटर्स इन द लास्ट डिकेड इंक्लूडिंग कौन से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स में. Formalization of jobs means that is in the formal sector, like person in like working job in a working like their duties in a formalized sector, and improvement in wages को लेके उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया. उन्होंने बोला कि जो from there it is found that nearly 34% of household in India earn less than proposed NFLMW of rupees 375 a day. Like 34% population in India is earning less than 375 a day. Okay, now what is this NFLMW? Is the minimum wage below which no state government can fix the minimum wage. That is कोई हर एक जॉब के लिए एक मिनिमम वेज रहता है हर स्टेट में. हर लाइक स्टेट में ये है कि आप कोई भी जॉब करो, कोई किसी को भी एम्प्लॉयमेंट आप प्रोवाइड करो, एक बिलो वेज लेवल है, एक मिनिमम वेज लेवल है, उसके नीचे आप किसी को ऑफर नहीं कर सकते. सो ये NFLMW इज द मिनिमम वेज बिलो विच नो स्टेट गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेज. इज इट क्लियर? नाउ इस फाइंडिंग से क्या पता पड़ा कि मोर देन लाइक नियरली अबाउट 34% पीपल इज 34% पीपल स्टिल और वर्कर्स अर्निंग लेस देन 375 रुपीज अ डे. ओके, these are very important data for your exam point of view. क्या है देखिए, फर्दर वेज इनइक्वालिटी वाइडन गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर. आप लोग पता है कि इंडिया का इनइक्वालिटी लाइक हर दिन हर साल ज़्यादा हो, मतलब ये जो गैप है मतलब बढ़ता जा रहा है. रिच अमीर और भी अमीर हो रहे हैं और पुअर और भी पुअर होते जा रहे हैं. ये जो गैप है ये लाइक वाइडन गैप, लाइक इट इंक्रीजिंग leaps and bounds. In 2022, the top 1% and 10% of the population held 12. ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है. इन 2022 क्या हुआ, एक डेटा से लाइक एक रिपोर्ट से ये पता पड़ा कि डेटा फ्रॉम वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस, उन्होंने ये डेटा पब्लिश किया कि 1% जो पॉपुलेशन है इंडिया का, वो क्या कर रहे, टोटल जो इकोनॉमी का जो जितना भी ये होता है, जितना भी पैसा है, 22% होल्ड कर रहे हैं. अब जस्ट इमेजिन. और रिमेनिंग 10% इज होल्डिंग 57% वेल्थ. Okay, 10% population is holding 57% wealth and only 1% population is holding 22% health. So अगर 100% से हम इसको माइनस करते हैं, आप देखना कि population हो गया 10%, 90% population is earning only 43%. Just imagine. और ये जो बॉटम का सिचुएशन और भी खराब है. while the bottom 50%, बॉटम जो 50% है held only 12.7% wealth. So कितना inequality है, you people can compare now. No, data show that the share of employment in the formal sector remained below 25%. Formal sector में जितना भी employment है इंडिया में, उसका 25% people और below 25% people are employing in
formal sector only, rest are working in informal sector. Very very important data for your exam point of view. The share of those who were self-employed remained above 50% by 2022-2023. self-employed कितना परसेंट है? 50%. Okay, so these are the some data related to your employment. You can use it. You need to remember this data. ओके ये एक देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. नाउ दस ये पॉइंट देखिए, इन द लास्ट 10 years जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज बाय 60%, while close to 35% of the total household earn less than the NFLMW. मतलब क्या है देखिए, जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी तो आपका ओवरऑल पॉपुलेशन का एवरेज आपका डेटा मिलता है, एवरेज डेटा मिलता है. इसका तो एक एक जने का नहीं मिलता है ना जीडीपी में. सो जीडीपी आपका इंक्रीज हुआ, देखिए जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज हुआ 60%, while close to 35% पॉपुलेशन और टोटल हाउस होल्ड अर्न लेस देन NFLMW, जो मैंने बोला, जो मिनिमम वेज रेट से 35% पीपल बिलो अर्न कर रहे टिल नाउ, ऑल्दो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ. नाउ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या है. फोर्थ टॉपिक जो है रिलेटेड टू योर वन नेशन वन इलेक्शन को लेके हैं. ओके, सो इस पेपर को हम जीएस पेपर 3 के साथ, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ कनेक्ट कर सकते. मोर ओवर इसको हम लैंग्वेज जो पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 1 के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं. बिकॉज दिस ईयर इन 2023 TCS मेंस ये क्वेश्चन आया था, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके ऐसे आया था. So this topic is very important because I hope, or we are hoping कि India is going to adopt this one nation and one election policy. क्या है देखिए, what is simultaneous election? Simultaneous election, also known as one nation one election, envisages a system where election to all state legislative assemblies, urban and rural, local bodies and Lok Sabha will have to be held simultaneously. अच्छा सुनिए, प्रेजेंटली जो इलेक्शन होता है, जैसे हमारा त्रिपुरा में इलेक्शन हुआ था 2023 में, इस बार हो रहा है लोकसभा इलेक्शन. सो कुछ दिन बाद होगा आपका अर्बन इलेक्शन म्यूनिसिपैलिटी का, फिर होगा पंचायत का. तो ऐसे क्या होता है, हर साल कुछ ना कुछ इलेक्शन रहता ही है. सो दिस लीड्स टू व्हाट, लीड्स टू आपका क्या होता है, काम में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत पैसा खर्चा होता है. सो टू like reduce the expense or like to reduce the expense of the election, ये पॉलिसी गवर्नमेंट सोच रहे लाने के लिए. सो हिस्टोरिक डेवलपमेंट क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शन वेयर द नॉर्म्स अंटिल 1967. ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब वन नेशन वन इलेक्शन टिल 1967 तक होता था. दैट मीन्स बोथ आपका स्टेट का एंड सेंट्रल का इलेक्शन होता था एक ही साथ. बट आफ्टर 1967 ये क्या हुआ, धीरे धीरे ड्यू टू सम लाइक सम इरेगुलरिटीज, प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ सम लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1968 एंड लोकसभा आप लोगों को पता है 1971 में नहीं हुआ था. सो इसी कारण क्या हुआ, ये सिस्टम पूरा बिगड़ गया था. एंड देयर आफ्टर ये क्या हुआ कि स्टेट में अलग इलेक्शन, अलग टाइम में अलग इलेक्शन, सेंट्रल में अलग इलेक्शन, ऐसा होने लगा. सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग बैक द ओल्ड सिस्टम. ओके, सो उसमें क्या क्या बेनिफिट होगा अगर मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन होता है, साइमल्टेनियस इलेक्शन में क्या क्या आपका बेनिफिट होगा. देखिए, पहला होगा कॉस्ट इफेक्टिव, जो इतना एक्सपेंस होता है हर साल इलेक्शन में वो कम हो जाएगा. फिर आपका क्या होगा, देखिए इम्प्रूव गवर्नेंस होगा. अभी देखिए आपका क्या होता है प्रेजेंटली, मान लीजिए कि त्रिपुरा का सिचुएशन आप सोचिए, अभी लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, त्रिपुरा का गवर्नमेंट जितना भी मिनिस्टर लोग हैं सब अभी लोकसभा लेके बिजी है. सो इट लीड्स टू व्हाट, गवर्नेंस में जो प्रॉब्लम होता है, अकाउंटेबिलिटी में प्रॉब्लम, लाइक डिग्रेडेशन आता है. तो इसीलिए ये अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा, इट लीड्स टू इम्प्रूव गवर्नेंस. सो लाइक मिनिस्टर विल फोकस ऑन मोर गवर्नेंस, वो गवर्नेंस में ज़्यादा फोकस करेंगे. इंक्रीज वोटर टर्नआउट, लोग भी लाइक हर साल कितना वोट देंगे, कोई रहता है बाहर, हर साल आएगा क्या वोट के लिए. सो अगर मान लीजिए 5 साल में एक वोट होता है, सो एवरीबॉडी विल कम एंड दे विल पार्टिसिपेट इन द वोटिंग, राइट, इलेक्शन. नाउ ये हो गया एडवांटेज. 4 नंबर पॉइंट क्या है देखिए,
मिनिमाइज पॉलिसी पैरालिसिस ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है तो क्या होता है, हर काम जितना भी होता है, जैसे मान लीजिए आपका टीपीएससी का एग्जाम प्रोसीड्योर सब क्या हो जाता है, स्टैंड स्टिल में आ जाता है, बंद हो जाता है। सो इट लीड्स टू व्हाट, लाइक पॉलिसी सिस्टम में क्या हो जाता है, एक पैरालिसिस हो जाता है ड्यू टू दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। 5 नंबर पॉइंट क्या है ये देखिए, प्रायोरिटाइजिंग नेशनल इश्यूज, डिमिनिश द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल कास्ट बेस्ड एंड कम्युनल पॉलिटिक्स। ये भी क्या होगा, इसको भी थोड़ा हम लोग डिमिनिश कर सकते हैं, जो रीजनल इश्यूज है। सो हम लोग जो नेशनल बेस्ड इश्यूज है उसको प्रायोरिटी, ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। ओके, सो दीज आर द सम बेनिफिट्स वी कैन राइट इन योर पेपर, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखिए, व्हाट आर द इश्यूज और लाइक डिसएडवांटेज क्या है। नेग्लेक्ट ऑफ रीजनल इश्यूज, रीजनल इश्यूज मान लीजिए त्रिपुरा में कोई इश्यूज है, सो उसको क्या होगा, अगर मान लीजिए साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है सो उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। सो ये एक प्रॉब्लम है। फिर आपका डिमिनिश अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या होगा, मान लीजिए अभी सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, सो लाइक साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाएगा ना, तो 5 साल के लिए चलो हो गया, हम लोगों का तो इलेक्शन हो गया, नाउ वी आर द लाइक एमपीज और एमएलएस फॉर 5 years, नो वन कैन डिथ्रोन अस। सो इसमें क्या हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस क्या होगा देखिए, सिंक्रोनाइजिंग इलेक्शन रिक्वायर अमेंडमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को भी चेंज करना पड़ेगा अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन करना है तो। लॉजिस्टिकल इश्यूज क्या होगा, एज पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज इज मैनेज बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर देयर स्टेट, दस प्रिपेयरिंग ए यूनिफॉर्म इलेक्टोरल रोल वुड बी डिफिकल्ट। ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली इतना बड़ा देश में ऐसा इतना इलेक्शन एक साथ साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करना भी एक बहुत बड़ा हैक्टिक टास्क मतलब होगा इलेक्शन कमीशन के सामने। Impractical. Experts believe that the idea is impractical in long run because the cycle will break again. Definitely. क्यों नहीं होगा देखिए, आज मान लीजिए साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, एक साथ हो रहा है सेंट्रल एंड स्टेट का। मान लीजिए 2 साल और 3 साल बाद कोई एक स्टेट में ऐसा हुआ कि वहाँ पे आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ गया और गवर्नमेंट गिर गया, तो नया गवर्नमेंट आएगा, सो हो सकता है ऐसा प्रेसिडेंट रूल भी आ जाए। सो दिस लीड्स टू व्हाट, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये साइकिल ब्रेक होगा। ओके, सो इसीलिए दिस क्रिएट प्रॉब्लम। नाउ करंट डेवलपमेंट क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फॉर्मर हम लोगों का जो प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनको लेके एक पैनल बनाया था विच इज नोन एज कोविंद पैनल ऑन रिगार्डिंग दिस वन नेशन वन इलेक्शन। उन्होंने क्या बोला कि कोविंद पैनल हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट आर द की फाइंडिंग्स, कि रामनाथ कोविंद पैनल हैज रिकमेंडेड दैट इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबली शुड बी हेल्ड एट द सेम टाइम। उन्होंने यही फेवर में बोला कि वन नेशन वन इलेक्शन शुड बी डन। सब्सिक्वेंटली इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज टू शुड बी सिंक्रोनाइज्ड सो दैट दे आर हेल्ड विद इन 100 days ऑफ द साइमल्टेनियस स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन। To give effect to its recommendation, the committee has suggested 15 amendments to the Constitution of India. Okay, so these are the findings on Ramnath Kovind panel. Next topic related to Human Development Report जो 2023-24 में पब्लिश हुआ है। इस टॉपिक को हम जीएस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी का पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक को। Okay. Now, what is Human Development Report? Human Development Report is published by UNDP, United Nations Development Program, since 1990. 1990 से ये publish होके जा रहा है. So, UNDP is an UN agency created by General Assembly of United Nations. In the Human Development Report of UNDP, Human Development Index is published. ये TCS TPS prelims में भी question आया था कि Human Development Report कौन publish करता है, that is UNDP. Okay. Now, Human Development Index is a comprehensive approach to measure development of a country. So उसमें broad 3 categories रहता है, उसके अंदर सब categories रहता है 11. HDI में क्या क्या है देखिए। So HDI indicator were developed for UNDP by a Pakistan economist Mehboob ul Haq in association with Amartya Sen. That means both
the scientist or economist, sorry, not scientist, economist of Pakistan and India collaboratively made this HDI. Now HDI score is given between 0 to 1. 0 is the worst score, 1 is the best score. ठीक है, 0 से 1 तक स्कोर देते हैं. 0 is the worst and 1 is the best. Now ये जो 3 ब्रॉड कैटेगरी है उसमें क्या क्या है, एक देखिए हेल्थ है, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है इकोनॉमिक स्टेटस. हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दैट मीन्स लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है. एजुकेशन मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है, पर कैपिटा इनकम है. इन 3 बेसिस से क्या एचडीआई को कैलकुलेट किया जाता है. नाउ इंडिया का जो रैंक है रिसेंटली, दैट इज 134 रैंक इंडिया का है आउट ऑफ 193 कंट्रीज. नॉट गुड. ओके, नाउ क्या है देखिए, इसका जो इस ईयर का जो टाइटल था, दैट इज ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, imagining cooperation in a polarized world. हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट क्या है देखिए, टॉप 3 कंट्रीज जो एचडीआई में सबसे अच्छा स्कोर किया. एक नंबर है स्विट्जरलैंड, सेकंड में है नॉर्वे, थर्ड में है आइसलैंड. हमारा देश का जो कितना रैंक है 134, इंडिया रैंक 134. नाउ अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ ग्रोथ, डिस्पैरिटी, डेमोक्रेसी पैराडॉक्स फेनोमेनन. अच्छा, मेन पॉइंट हम देख लेते. नाउ करंट डेवलपमेंट क्या है, इंडिया रैंक्स 134 ऑलरेडी डिस्कस. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया का कितना है देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया का रीच्ड 67.7 ईयर्स इन 2022, अप फ्रॉम 62.7 ईयर्स. ये डेटा यू कैन यूज, दिस डेटा यू कैन यूज वेयर एनी क्वेश्चन came in 2020 TCS TPS मेंस में क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग हेल्थ सेक्टर कि कंपेयर द हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया विद द त्रिपुरा, हेल्थ सेक्टर ऑफ त्रिपुरा. सो ऐसे कंपैरिजन का क्वेश्चन अगर आता है ना, सो यू कैन यूज दिस डेटा लाइक इन द ईयर लाइक 2020 में कितना है, पिछले लाइक प्रीवियस ईयर में कितना है. सो यू कैन कंपैरिजन, यू कैन कंपेयर बाय यूजिंग दिस डेटा. सो जीएनआई पर कैपिटा, अच्छा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है. ओके, सो इंडिया का जो रैंक स्कोर हुआ है दैट इज 0.644 इन 2022. इट्स लीड्स टू व्हाट 134 रैंक. ओके, इंडियाज रैंक इन 1990 में कितना था देखिए, दैट इज कितना स्कोर था, दैट इज 0.434 रैंक था. अभी देखते कि इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है उनका क्या स्टैंड है, परफॉर्मेंस ऑफ इंडियाज नेबर्स. हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी श्रीलंका का रैंक देखिए 78 है, चाइना का 75 है, दैट इज दे आर डूइंग बेटर देन इंडिया. मीडियम हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में यह आता है, वेयर एज मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश. इनफैक्ट देखिए बांग्लादेश का भी सिचुएशन इंडिया से काफ़ी अच्छा है. इंडिया का रैंक है 134, बांग्लादेश का रैंक है 129, भूटान का रैंक है 125. वेयर एज लो ह्यूमन डेवलपमेंट जो कैटेगरी है उसमें जो नेशन आता है नेपाल एंड पाकिस्तान, ओके, हैव बीन रैंक्ड लोअर देन इंडिया एंड दे कैटेगराइज एज लो ह्यूमन डेवलप्ड कंट्री. ओके, नाउ आप लोगों को रिसेंटली जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो आप लोगों को रिसेंटली पता है कि इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन कंट्रीज के साथ किया है, एग्रीमेंट साइन किया है. ओके, सो इस टॉपिक को हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं. मोर ओवर इसको इकोनॉमी के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक को, जो जीएस पेपर 3 में आता है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन डी में है. क्या है देखिए, The India and Economic Partnership Agreement is the latest in the India's recent free trade agreement, जो मैंने already बोला. Okay, so ये point देखिए, this is very important. As its name suggests, the thrust of the free trade agreement is deeper economic agreement with the European Free Trade Association, countries like Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein. Liechtenstein ये जो आपका 4 कंट्री है, मेनली इनके साथ जो डेवलप्ड कंट्री है इनके साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका साइन हुआ. ओके, नाउ व्हाट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है एक्चुअली. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज अ पैक्ट बिटवीन 2 or more नेशन टू रिड्यूस barriers to import and export among them. Goods and services can be bought and sold across international border with little or no government tariff, quotas, subsidies or prohibition or
इनहेबिट देयर एक्सचेंज। मतलब क्या है, मान लीजिए कि चाइना ने इंडिया में चाइना का कुछ प्रोडक्ट इंडिया में सेल करना है, ठीक है। सो इंडिया गवर्नमेंट विल इम्पोज सम टैक्स और टेरिफ ऑन द प्रोडक्ट ऑफ चाइना। सो चाइना का मान लीजिए वही प्रोडक्ट चाइना में 10 रुपये है, सो इंडिया में आएगा तो वो 15 रुपये हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस टेरिफ एंड ऑल। सो ये ज़्यादा हो जाता है, पीपल क्या होता है कम खरीदते हैं, बिकॉज मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बोल रहा हूँ। सो पीपल विल बाई लेस बिकॉज 15 रुपये में कौन लेगा, दे आर अवेलेबल इन 10 रुपीज। सो अगर टेरिफ ज़्यादा होता है, मतलब इन अदर वे अगर टेरिफ ज़्यादा कम होता है तो क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा होता है दो कंट्री में। सो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसके रिगार्डिंग क्या आपका लाइक बेनिफिट होगा इंडिया का। देखिए, टेपा सेट्स आउट ए टारगेट ऑफ $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया फ्रॉम EFTA कंट्रीज, मेनली आपका जो 4 कंट्री बोला मैंने, एंड 1 मिलियन जॉब्स ओवर ए 15 years ऑफ पीरियड। जस्ट इमेजिन 1 मिलियन ऑफ जॉब, दैट मीन्स नियरली 10 लाख जॉब होगा, एंड आपका नियरली $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया को मिलेगा थ्रू दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, सो दिस ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज गिग इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे को लग रहा है कि TCS में ये टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक को हम बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये GS पेपर 4 जो इंडियन इकोनॉमी का बेसिक फीचर्स एंड इंडियन इकोनॉमी है उसके साथ ये टॉपिक कनेक्ट कर सकते हैं। क्या है टॉपिक, देखिए। What is gig economy? Gig economy क्या है, देखिए। A recent survey conducted across multiple Indian cities titled Prisoners on Wheels sheds light on the challenges faced by the over 10,000 cab drivers and delivery persons. अच्छा, what is gig economy? यहाँ पे gig economy क्या है, देखिए। A gig economy is a labor market that relies on independent, that relies on independent contractors and freelancer rather than full time permanent employees। मान लीजिए मैं एक बोल रहा हूँ, स्विगी, हम लोग त्रिपुरा में अगरतला में स्विगी है, स्विगी डिलीवरी बॉय है। ओके, सो ये जो स्विगी डिलीवरी बॉय है, ये कोई ऐसा नहीं कि उसका जॉब परमानेंट है, कोई ऑर्गेनाइज्ड है। उसका जो इनकम डिपेंड करेगा वो कितना डिलीवरी प्रोवाइड करता है हर रोज। वो जितना डिलीवरी देगा, जितना लाइक आपका खाना जितना ऑर्डर डिलीवरी करेगा उसका उतना इनकम होगा। वो अगर बेटर रहेगा तो एक भी पैसा नहीं होगा। सो दिस एम्प्लॉयमेंट कम्स अंडर दिस गिग इकोनॉमी। इन रिसेंट ईयर द ग्लोबल जॉब मार्केट हैज विटनेस्ड ए ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट विद द राइज ऑफ द गिगिफिकेशन और एडॉप्शन ऑफ द गिग मॉडल reshaping how we work. Okay, now they include the following। क्या क्या है गिग इकोनॉमी में, क्या क्या आता है, देखिए। फर्स्ट, फ्रीलांसर हु गेट पेड पर टास्क। एक टास्क के लिए जो फ्रीलांसर क्या होता है, मान लीजिए यू लाइक वर्क इन ए ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग बोले कि आप उनके लिए कोई प्रोडक्ट बनाइए, जितना प्रोडक्ट बनाएंगे उतना आपको पैसा देंगे पर प्रोडक्ट के हिसाब से, पर टास्क। एक टास्क दिया आपको, उस टास्क के हिसाब से आपको पैसा देंगे। नॉट यू आर ए फिक्स्ड एम्प्लॉय की एक महीना में आपका इतना सैलरी मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। आप जितना टास्क करोगे उसी टास्क के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। दिस नोन एज freelancer. Now independent contractor who perform work and get paid on a contract to contract basis, this also comes under this gig economy. Now क्या है, देखिए बेनिफिट्स ऑफ गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी में क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स है वर्कर्स के लिए। क्या है, देखिए कि मान लीजिए कोई वर्कर है, उसको अभी फुल टाइम नहीं देना है, उसको ज़्यादा इनकम करना है, सो वो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा कमाएगा। कस्टमर्स के लिए भी फ़ायदा है, कस्टमर्स के लिए चॉइसेस ज़्यादा हो जाएगा, कन्वीनियंस हो जाएगा, क्वालिटी मिलेगा, एफोर्डेबिलिटी मिलेगा। एंड एम्प्लॉयर्स के लिए भी अच्छा है। मान लीजिए कि आपको क्या होगा, आपको एक एम्प्लॉय, आपकी बिजनेस में कोई बिजनेस एस्टेब्लिश में आपने एक एम्प्लॉय रखा है, उसको आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं एंड ही इज़ जस्ट डूइंग हिज डेली ड्यूटी, नॉट दैट मच लाइक वो कर रहा है, काम ही कर रहा है और कुछ नहीं है। और ऐसा अगर होगा कि आपका मान लीजिए कि कोई प्रोडक्शन है, आपने बोला कि आपका टारगेट है 500 प्रोडक्ट चाहिए, आपको 500 लाइक कोई भी चीज़ बनाना है,
वो आपको बोलेगा कि ठीक है मैं घर पे बना के दे दूंगा, आप मेरे को 5 प्रोडक्ट के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए कुछ पैसा दे दीजिए। सो उसके लिए आपका भी हेडेक नहीं है कि महीने में आपका कोई एम्प्लॉय कोई सैलरी देना नहीं पड़ रहा है, आपका 500 प्रोडक्ट चाहिए वो दे रहे हैं आपको, ओके, और ही इज जस्ट चार्जिंग फॉर दिस 500 प्रोडक्ट्स ओनली, नॉट मंथली एनी चार्जेस। सो ये एम्प्लॉयमेंट के जो ओनर के लिए भी अच्छा है गिग इकोनॉमी। इसके लिए गिग इकोनॉमी का कंसर्न क्या क्या है, व्हाट आर द कंसर्न रिलेटेड टू, इसका ड्रॉबैक्स क्या क्या है। देखिए फास्ट, ये तो फॉर्मलाइजेशन नहीं है ना, जो भी लोग काम करेंगे ये तो कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एज ए रेगुलर एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे, सो फॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, देयर इज अ लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन इन दिस सेक्टर। लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी, कोई सोशल सिक्योरिटी, कोई आपका पेंशन नहीं मिलेगा, कोई आपका इंश्योरेंस नहीं मिलेगा ऐसे गिग इकोनॉमी में, ऐसे कोई सेक्टर में अगर कोई काम करता है। पेमेंट एंड इंसेंटिव एंड ग्रोथ मॉडल्स, एब्सेंस ऑफ मिनिमम वेज गारंटी, कोई मिनिमम वेज गारंटी नहीं होता है इस गिग इकोनॉमी में। फिर आपका ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग का भी प्रॉब्लम है। फिर आपका सोशल स्टिग्मा है, लोग बोलेंगे कि क्या करते हो, क्या काम करते हो, बोलेंगे इसमें तो कोई श्योरिटी नहीं है, कोई लड़की का बाप उसकी लड़की का हाथ नहीं देंगे। सो पीपल विल फेस वेरी प्रॉब्लम। सो लोग बोलेंगे क्या करते हो, बोलते क्या काम करते हो, कि हम डिलीवरी बॉय हैं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, कितना मंथली में कितना कमाते हो। सो यू कैन नॉट से कि आज है कल नहीं है, सो देयर इज ए फ्लक्चुएशन। सो ये एक प्रॉब्लम है। सो दिस ऑल अबाउट दिस गिग इकोनॉमी, ओके, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिटेल्स आप कुछ डेटा है थोड़ा देख लेना आप लोग, ये डेटा पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम में। सो व्हाट आर द, इसका कंक्लूजन में क्या आपका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सोशल सिक्योरिटी और ऐप बेस्ड वर्कर्स, सोशल सिक्योरिटीज प्रोवाइड करना ज़रूरी है उनको। वेलफेयर बोर्ड फॉर गिग वर्कर्स, एड्रेसिंग ऑक्यूपेशनल आपका हेल्थ हैजर्ड, ओवर टाइम पेमेंट बियॉन्ड रेगुलर हाउस, पेमेंट मिनिमम वेजेस और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, दीज आर द सम सॉल्यूशंस गिवन बाय द राइटर, कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है गिग इकोनॉमी का, जो सोशल सिक्योरिटी जो उनका डिसएडवांटेज है उसको एडवांटेज में लाने के लिए। बिकॉज गिग इकोनॉमी इन इंडिया इज ग्रोइंग, ओके, इट्स ए ह्यूज मार्केट इन फ्यूचर, सो वी शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, आप लोग ये क्वेश्चन रेडी करना, रेडी करके मेरे को कमेंट सेक्शन में भेजना, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। आई विल चेक इट आउट कि आप लोग कैसे लिखे, ओके। इस हर क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन दूंगा एट द एंड ऑफ द मंथ, ओके। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर दिस लेक्चर टू योर फ्रेंड्स, एंड टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।